नेपोटिज्म इन इंडिया एंड स्पेशली इन बॉलीवुड इज अ नेवर एंडिंग डिबेट। हर एक नई मूवी और उस मूवी में की गई नई कास्टिंग के साथ एक नया ट्रोलिंग सेशन शुरू होता है कास्ट किए हुए नेपो बेबी का, और फिर पहले 1000 बार ऑलरेडी हो चुकी डिस्कशन दोबारा से होने लगती है कि एक और मूवी गई पानी में एंड व्हाई डू दे कीप कास्टिंग नेपोज व्हेन दे कांट इवन एक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। मगर पिछले महीने समथिंग एल्स हैपेंड। लैक्मे फैशन वीक के वजह से एक नई डिबेट शुरू हुई है एंड दिस टाइम अराउंड इट्स अबाउट नेपोटिज्म in the modeling industry. Whether it's Bollywood or modeling, the main culprits are always the same group of nepo babies spreading their mediocrity no matter which field they step in. This time around it's Janhvi who was easily overshadowed by the lineup of actual fantastic models behind her, but especially Tamanna Katoj who went viral after this entire fiasco. By the way, तमन्ना ने ये इंस्टा पोस्ट शेयर किया था आफ्टर इंटरनेट आउटरीच। इंडियन डिजाइनर्स शुड स्टॉप मेकिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एज देयर शो स्टॉपर। आई मीन द मॉडल at the back slayed so hard. However, let's not forget that this is not the first time we are witnessing the terrible walks of celebrities who seem like they are halfway between stumbling and pretending that this is how the walk was supposed to be. Their walks look like rehearsal that accidentally went live. ये रही सारा अली खान trying hard to channel her inner Kangna from fashion but failing badly at it. Kangna is by the way the only one who is truly the queen of ramp walks when it comes to Bollywood actresses, but unfortunately not every Bollywood celebrity is good at it like her. By the way, ये प्रॉब्लम सिर्फ बॉलीवुड तक ही लिमिटेड नहीं है। लगभग 6 महीने पहले एग्जैक्ट यही डिस्कशन हॉलीवुड में हो रही थी दैट नेपोटिज्म इन मॉडलिंग इज गोइंग आउट ऑफ हैंड। दिस इज रोज किडमैन अर्बन जिसने म्यू म्यू के लिए शो ओपन किया था। Look at that walk. Both her parents are A-list Hollywood celebrities, by the way, Nicole Kidman and Keith Urban. So she got her runaway debut as a show opener for a top-notch fashion show, kind of how Janhvi did for Rahul Mishra for Lakme Fashion Week. Lily Rose Depp, daughter of Johnny Depp. All of these are like Janhvi, Sara, Ananya of Hollywood. Mediocre talent, but endless opportunities, both in movies and ramp walks. So let's dive in today and discuss why do celebs on ramp walk piss people off so much, and at the same time why no matter how much the outrage, this is not going to end. In fact, जिस तरह से हमारी सोसाइटी डिजाइंड है और जिस तरफ हमारी इकोनॉमी जा रही है, उस हिसाब से ये लगता है कि it will only get worse. And I am not just saying it, I mean every word of it, that it is going to get worse. Self-made models are like unpaid interns, at least in the beginning. नेपोटिज्म की वजह से सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि शो ओपनर या शो स्टॉपर की जगह किसी रियल टैलेंटेड मॉडल को हटाकर किसी नेपो बेबी को दे दी जाती है जिन्हें चलना भी नहीं आता है ठीक से। It actually kills the career of a lot of budding models who are trying to tap into the industry, and it also kills the career of well-established models as well. Allow me to explain. हमने बहुत सारी ऐसी कहानी सुनी होंगी कि किसी मॉडल को सड़क पे या मॉल में किसी टैलेंट एजेंसी के वर्कर ने स्पॉट कर लिया था और फिर उन्होंने मॉडलिंग का ऑफर दिया। एज अ रिजल्ट दैट मॉडल हैड अ रियली इजी वे टू रीच द टॉप। ऐसा ऐश्वर्या राय, लीजा हेडन, नेओमी कैम्बेल, केट मॉस, इन सब के केस में हुआ था। मगर ऐसा सिर्फ बहुत गिने चुने लोगों के साथ ही होता है। मोस्ट ऑफ द मॉडल्स, I mean maximum models, इतने लकी नहीं होते हैं। They had to struggle their way to success. Like for example, हर मॉडल को हाई क्वालिटी फोटो शूट करवाना पड़ता है अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। फिर आती है एजेंसी और मैनेजमेंट फीस, और फिर खुद के लिविंग एक्सपेंसेस, और ये सब अपनी जेब से भरना पड़ता है जिसके लिए उन्हें साइड जॉब्स भी करने पड़ते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जगह जगह जाके ऑडिशन देना। Now because of all of this, पर्दे के पीछे इतने खर्चे होते हैं कि हर कोई लंबे वक्त तक इंडस्ट्री में सस्टेन नहीं कर पाता है। तो जो कर पाते हैं वो बस वही लोग होते हैं जिनके पीछे उनके पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम, और सपोर्ट सिस्टम से मेरा मतलब है पेरेंट्स का पैसा लग रहा होता है टू सस्टेन देम बिफोर दे एक्चुअली बिकम पॉपुलर इनफ एज अ मॉडल। इसी वजह से नेपो किड्स कैन सर्वाइव इन एनी इंडस्ट्री बिकॉज दे हैव एंडलेस अमाउंट ऑफ मनी नीडेड फॉर सपोर्ट, एंड आउटसाइडर्स हैव टू लीव आफ्टर अ व्हाइल। और फिर क्योंकि आउटसाइडर्स को खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना होता है तो वो हमेशा फैशन डिजाइनर से रीजनेबल प्राइस डिमांड करते हैं अपने काम के लिए, वर्सेस नेपो बेबीज बहुत आसानी से शुरू में बड़े डिजाइनर्स के लिए फ्री में रैंप वॉक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे डिजाइनर्स का ऑन वन हैंड पैसा बचता है क्योंकि उन्हें शो ओपनर या शो स्टॉपर के लिए किसी बड़ी एस्टैब्लिश्ड मॉडल को ही हायर करना पड़ता है जिनकी फीस काफी हाई होती है। तो उससे अच्छा है कि किसी नेपो बेबी को हायर कर लो फ्री में या बहुत कम फीस में, बिकॉज दे आर विलिंग एंड डेस्परेट टू डू इट फॉर मोर मीडिया अटेंशन।
fashion as they don't need extra money in the first place. So this is like unpaid internship. जैसे हम लोगों को बोला जाता है ना कि सो एंड सो जगह पे अनपेड इंटर्नशिप कर लो, तुम्हारा पोर्टफोलियो इंप्रूव हो जाएगा. बट द थिंग इज, अनपेड इंटर्नशिप करते वक्त भी आपके पास पहले से ही इतने पैसे होने चाहिए दैट यू कैन सस्टेन योरसेल्फ फाइनेंशियली ड्यूरिंग दैट टाइम. तो बस जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वही लोग अनपेड इंटर्नशिप करते हैं. इन द सिमिलर फैशन, सेल्फ मेड मॉडल्स रैंप वॉक्स फ्री में या बहुत कम प्राइसेस पे नहीं कर सकती हैं जस्ट फॉर एक्सपोजर बिकॉज दे नीड दैट मनी. Meanwhile, Nepo babies can do it very easily all the time. More hate for Nepo babies automatically means more attention. Another reason कि डिजाइनर सोशल मीडिया में अपने कलेक्शन, अपने काम के लिए एक्सपोजर चाहते हैं और उसके लिए सबसे अच्छा टेक्निक है हायरिंग नेपो बेबीज. और ऐसा कई कारणों से है. सबसे पहला तो ये कि नेपो बेबी के पीछे बहुत बड़ी पीआर मशीनरी लगी होती है जो इस शो के क्लिप्स ऑल ओवर सोशल मीडिया में फैला देंगे. यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यू नेम इट, they'll do it. So free publicity. And even if off chance उस nepo baby की criticism होती भी है तो सिर्फ nepo baby will come under the fire. The designer and the casting director will get away with it. I mean example आपके सामने है. अभी तक जानवी की जितनी भी criticism हो रही है उसमें आपने एक शब्द भी डिजाइनर के अगेंस्ट सुना है. The fashion designer was राहुल मिश्रा by the way. I mean जानवी को इतने टॉप क्लास मॉडल्स के सामने खड़ा करके शो ओपन करवाया तो डिजाइनर और उसकी टीम ने ही था ना. Then why is he not being criticized? जानवी is the only one receiving shit on social media, while राहुल मिश्रा जी के डिजाइन्स को फ्री में पब्लिसिटी मिल रही है all over the place. And this is going to keep going on. क्योंकि जब तक जानवी की वजह से ये वॉक वायरल नहीं हुई थी तब तक हम में से कोई भी किसी भी फैशन शो के रैंप वॉक में इंटरेस्टेड नहीं थे. मे बी ओकेजनली कोई देख लेता हो एक आध बार, बट इट हैज नेवर बीन अ मेन स्ट्रीम थिंग इफ यू गेट व्हाट आई मीन. इनफैक्ट वक्त वक्त पे हम लोग कोई भी रैंप वॉक अगर देखते भी हैं तो किसी ना किसी एक्टर या एक्ट्रेस की ही वजह से देखते हैं. तो जो दिखता है वही बिकता है. And designers know that. So this will keep happening, mark my words. Although it brings a lot of heat on the Nepo baby, so I don't get that why do they keep doing this after constant rolling. Actually, you know what? Now that I think of it, I do know why do they keep doing it. They do it with the same shamelessness with which they act in movies, with their mediocre acting, even after they are delivering flops after flops. Look, the thing about Nepo babies is they want to become stars, not actors. So they don't care about polishing their art. And being a star means being popular and being in front of the camera almost 24/7. So for them, all publicity is good publicity. अब नेपो बेबीज की हायरिंग के लिए हमेशा ये आर्ग्यूमेंट आता है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से कि नेपो बेबीज आर हायर्ड बिकॉज पीपल वांट टू लुक एट देम. आम जनता को क्यूरियोसिटी है कि सो एंड सो स्टार का बेटा या बेटी की प्राइवेट लाइफ कैसी है, वो किसे डेट कर रहे हैं, वो कहाँ खाने पीने जाते हैं, वो वैकेशन पे कहाँ जा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट दैट्स नॉट द रियलिटी. वो हाइप क्रिएट करी जाती है थ्रू देयर ह्यूज एंड वेल ऑयल्ड पीआर मशीनरी. कशिश फ्रॉम स्प्लिट्सविला एक्सप्लेन्ड इट बेस्ट. यामी गौतम कितनी टैलेंटेड है. क्या आप उसको उतना देखते हो जितना आप जानवी कपूर को देखते हो? और जानवी कपूर सुंदर है, बहुत सुंदर है, ठीक है, थैंक्स टू ऑल दी वर्क दैट शी इज़ गॉट डन एंड वट एवर, दैट्स ओके. सुहाना खान ने मूवी नहीं की है, उसको मेबलिन मिल गया. Ananya Pandey has been on Coffee with Karan. Radhika Apte and Yami Gautam have been working since forever and nobody is caring. PR हो रहा है उनका तो तुमको पता लग रहा है तो तुम और पूछते हो. इन लोगों का तो PR ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो लोग होने नहीं दे रहे हैं because they don't have the money, because they are in that family. It's a loop. I mean, look. कोई भी खुशी कपूर या राशा थडानी या शनाया कपूर में इंटरेस्टेड नहीं था, बट पीआर एंड कांस्टेंट पापाराजी शॉट्स मेक श्योर दैट दे आर ऑल ओवर सोशल मीडिया. फिर यही लगातार करते रहेंगे तो काफी सारे लोग इन्फ्लुएंस होके फॉलो करने ही लगेंगे, और अगर नहीं भी किए तो पैसे देकर फेक फॉलोअर्स खरीद लेंगे और चारों तरफ यही बात फैला देंगे कि इस स्टार किड की पॉपुलैरिटी इतना अधिक बढ़ी है. तो ये पूरी की पूरी मैन्युफैक्चर्ड पॉपुलैरिटी है जो नेपो बेबीज को स्टार्स बना देती है, पर अच्छा एक्टर या अच्छा मॉडल नहीं. लेकिन इसी बात का फायदा फैशन डिजाइनर्स को होता है when they hire these nepo babies because of their PR. फैशन डिजाइनर्स इसी PR मशीनरी का फायदा उठाते रहेंगे over hiring actual good models. So we can cry and outrage as much as we want to, but this is a symbiotic association. Everyone is benefiting from everyone else. You scratch my back and I'll scratch yours. And the only fool in all of this is the audience. अब अगर इतने कारण काफी नहीं है, here is one of the biggest reason why we can no longer have supermodels like we did in the 90s. Like Naomi Campbell, Yasmin Ghori, Shalom Harlow, Cindy Crawford, etc. The Gen Zification of luxury market.
It's because luxury brands are no longer luxury. Allow me to explain. Luxury brands जैसे कि Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Prada are now shifting their target customer group from wealthy old money people to current influencer generation. और इसकी वजह से उनका एस्थेटिक और लुक्स भी शिफ्ट हो रहा है. ओल्ड मनी का जो क्लासिक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्ट कलर्स लॉन्ग सिलुएट उससे अब शिफ्ट होके जेन जी एस्थेटिक बन गया है. ये रहा एक एग्जांपल शनेल का. दिस इज द पास्ट एज ए 90s एंड दिस इज नाउ. एंड आई एम नॉट सेइंग कि एस्थेटिक कम्प्लीटली 180 डिग्री का टर्न ले लिया है, बट at the same time, there are very visible changes. And then this is Gucci. Gucci in the past, long silhouette, colorful, but very sophisticated, graceful look. And this is Gucci now. A pagoda for a headdress. Third eye. But the worst part is not even the third eye. It's the fact that all three of her eyes are completely dead. जबकि पहले की मॉडल्स ऐसे लगती थी जैसे वो अपना रैंप वॉक ट्रूली इंजॉय कर रही हो. I don't even know what to say to this. Is she going to rob a bank? Did she forgot her clothes? I don't know. This looks like a cross between a clown and a Chinese New Year dragon. Oh look, an actual dragon. Mother of, no, non-binary parent of dragon. Basically, अब के रैम्प शोज शॉक वैल्यू के लिए होते हैं instead of the grace that they were originally known for, because shocking things get viral on social media and get talked about in public. The worst shift that I have ever seen is of Balenciaga. ये था OG Balenciaga. I mean, just look at the grace and class. और ये हैं आपके डिजाइन्स. Cristobal Balenciaga, who was the original owner and designer of Balenciaga, would roll over in his grave at this monstrosity. Anyway, I got a bit carried away talking about various designs of the show. Back to the topic. Now aesthetics सिर्फ कपड़ों का ही नहीं बल्कि मॉडल्स का भी शिफ्ट हो गया है. एज इन जब आपके टारगेट कस्टमर ग्रुप खानदानी रईस लोग हुआ करते थे, द ओल्ड मनी पीपल, तब उन्हें इम्प्रेस करने के लिए देयर वाज अ नीड ऑफ हायरिंग सोफिस्टिकेटेड वेल ट्रेन्ड मॉडल्स हु लुक लाइक दे जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ अ मल्टी-millionaire's 13th century French palace, who is tall and fit and is an epitome of grace and sensuality. But now with the shift in consumer base to Gen Z people whose idols are influencers and celebrities and who live for more and more social media engagement, now for this customer base they have to hire the people who can get the attention of this generation, which would be those same influencers and celebrities that Gen Z follows the most. So celeb kids like Rose Kidman Urban or Kaya Gerber with their millions of followers are the prime choice for ramp walk for designers. आखिरकार इसी तरीके से वो वायरल होंगे अपने ऑडियंस या कस्टमर बेस में जिसे वो टारगेट कर रहे हैं. Listen to this. And he made his fortune preying on poor people. And I know what you're thinking. Vivian, he's the CEO of Louis Vuitton Moet Hennessy. He caters to the rich. Wrong. Going to break down how the luxury industry actually works. Most people think brands like Louis Vuitton, Dior, Fendi, whatever, cater to the upper crusty. But in fact, their lifeblood is the middle class and lower income people, aka folks who want to look rich. This is because these brands are associated with wealth, and we as humans demonstrate our social status in part by how we dress. And when we see paparazzi photos of celebs and socialites carrying new products, the association is, oh, look, a cool rich person is carrying this. If I get one and carry it, I'll be cool and rich too. But behind the scenes, these people are not paying for these products. They're being gifted. In some cases, they're even being paid to be brand ambassadors. Yeah, so that's how brands are making money for a really long time now. उनके कस्टमर्स अब मेनली रईस लोग नहीं हैं, और यही एग्जैक्ट चीज इंडिया में भी हो रही है. अगर आप 90s या उससे पहले के टाइम में पैदा हुए हो और मिडिल क्लास से आते हो, तो आप ही सोचकर बताइए, डिजाइनर या ब्रांडेड कपड़ों जैसी कोई चीज हुआ करती थी क्या इन द पास्ट? इनफैक्ट शादी के लहंगे या शेरवानी भी लोकल होता था. आज की तरह मनीष मल्होत्रा या सब्यसाची का डिमांड नहीं हुआ करता था इन मिडिल क्लास. सो मिडिल क्लास गोइंग आफ्टर ब्रांड्स इज अ fairly new trend. So brands are now targeting middle class average people. तो एवरेज लोगों के द्वारा जो लोग सबसे अधिक फॉलोड हैं, जैसे कि बॉलीवुड सेलेब्स या इन्फ्लुएंसर्स, उन्हें हायर किया जाता है फैशन शोज में डिजाइनर्स के द्वारा, बिकॉज दीज पीपल लिटरली हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स. एंड डोंट बी सरप्राइज्ड अगर कुछ दिन में आपको उर्फी जावेद या नैन्सी त्यागी भी रैंप वॉक करते हुए दिखें ओवर प्रोफेशनल मॉडल्स. अभी मैंने नितांशी गोयल का एक वीडियो देखा था रैंप वॉक करते हुए. ये बीच में क्या कर रही है? समबडी प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी. अगर पैर छूना तो और आशीर्वाद ही लेना तो कैमरे के पीछे भी हो सकता है. आशीर्वाद तो आशीर्वाद ही होता, सामने या पीछे, बट नहीं, रैंप वॉक रोक करके आशीर्वाद लेना है.
बिकॉज दैट्स हाउ यू गेट सोशल मीडिया एंगेजमेंट। एंड ऑल्सो इमेजिन अगर इस रैंप वॉक के साथ पूरा का पूरा एक म्यूजिकल लाइन अप होता कि म्यूजिक के इतने टोन तक इस मॉडल को वॉक करना है, इसके बाद फिर दूसरी मॉडल वॉक इन करेगी, तो ये पूरा का पूरा लाइन अप कम्प्लीटली डैमेज हो गया होगा। बट दिस इज व्हाट व्यूज एंड एंगेजमेंट फार्मिंग इज। इसी वजह से अब आप देखोगे कि बहुत सारी मॉडल्स सोशल मीडिया पे रेगुलरली एक्टिव हैं, बोथ इन वेस्ट एंड इंडिया, क्योंकि उन्हें भी पॉपुलैरिटी चाहिए जिसके पीछे डिजाइनर्स भाग रहे हैं। जितना अधिक उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग होगी उतना अधिक उनका मॉडलिंग करियर स्टेबल रहेगा। नाउ दिस इज अ मॉडल नेम्ड मैरी ग्रेस, और इसने एक बार बताया भी था कि ऑलमोस्ट हर कास्टिंग डायरेक्टर अब मॉडल से उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के बारे में पूछते हैं। इवन अ प्रोफेशनल मॉडल कंफर्म्स व्हाट आई वाज सेइंग। तो मेरी बात याद रखिएगा, जानवी के अगेंस्ट आउटरेज से कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज द सेम जनरेशन हु इज currently outraging is also following them the most on social media sites. So guess who will walk the shows and give maximum social media attention to designers and their creations? Yeah, so that was basically my 2 cents about why all of this isn't changing anytime soon, because it's like a cycle of customer, actor and designer. Customer या audience as in हमारे जैसे common लोग बॉलीवुड celebs या influencers को follow करते हैं in millions. The celeb wants even more attention and want to constantly be in the media, so they go after designers for fashion shows etc. And designer is going after the audience or customers attention, so they hire the people who the customer is following, which happens to be an influencer or actor. And nothing is going to change out of this dynamic. Everyone is benefiting from everyone else, and talent has gone for a toss, so we are stuck with this pleasing the nepo daddies / mommies. अगर आप में से किसी ने अभी तक नोटिस नहीं किया है तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ऑलमोस्ट हर बिग या मिडिल बजट मूवी या नेटफ्लिक्स शो के साथ एक फैशन डिजाइनर एसोसिएटेड होता है जो पूरे कास्ट का वार्डरोब डिजाइन करता है और फिर उसे सप्लाई भी वही करवाता है। ये वार्डरोब डिजाइनिंग इस हिसाब से होती है कि वो शो किस टाइम पीरियड में सेट है, किस शहर या किस इकोनॉमिक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, वगैरह वगैरह। एंड बिगर द मूवीज बजट, मोर द अर्निंग फॉर द डिजाइनर। सो ऑफ कोर्स फैशन डिजाइनर्स को नेपो बेबीज, उनके पेरेंट्स और उनके गॉड पेरेंट्स लाइक करण जौहर, आदित्य चोपड़ा एक्सेट्रा को भी खुश रखना पड़ता है बाय रेगुलरली इनवाइटिंग द नेपो बेबीज फॉर रैंप वॉक्स। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, पिछले कुछ सालों में ही मनीष मल्होत्रा ने इतनी मूवीज की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करी है, और अभी उसके पहले वाले सालों की तो मैं बात भी नहीं कर रही हूँ। एंड इट इज द सेम थिंग फॉर अदर बिग डिजाइनर्स एज वेल। प्लस इवन इफ अ एक्टर इज नॉट अ नेपो बेबी, स्टिल आजकल ये ट्रेंड भी चला है फॉर सम रीजन कि एक्टर एंड एक्ट्रेसेस वॉक द रैंप फॉर प्रमोटिंग देयर शो। तो इस केस में अक्सर ऐसा होता है कि जिस डिजाइनर ने एक पर्टिकुलर मूवी की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग हैंडल करी है, उस डिजाइनर के लिए ही उस शो के एक्टर एक्ट्रेसेस रैंप वॉक करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। मगर एक चीज मुझे पॉइंट आउट करनी है कि ये हैबिट पर्टिकुलरली बॉलीवुड में ही फॉलो होता है कि मूवी स्टार्स मूवी प्रमोशंस के लिए रैंप वॉक करते हो और फिर उसे मीडिया का कवरेज मिलता हो। ऑल्दो हॉलीवुड में भी नेपोटिज्म की प्रॉब्लम है, बट स्टिल ये एक प्रैक्टिस है जो हॉलीवुड में अभी तक नहीं होती है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका सोल्यूशन क्या है, जस्ट बिकॉज लग्जरी मार्केट इज टारगेटिंग कॉमन पीपल, दैट डजंट मीन that we want the influencers and actors on ramp. And how do we convey it to the designers that we genuinely appreciate good models on the ramp? Because you know, even though we aren't old money rich, that doesn't mean that we don't appreciate talent. Well, वो तभी हो सकता है जब हम लोग कलेक्टिवली इन इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को इतना अधिक फॉलो करना बंद करें। A huge chunk of these followers are men who are simping on these female celebrities and vice versa for male celebs. उनकी बहुत बड़ी फीमेल फॉलोइंग है, चाहे भले ही एक्टिंग बेकार हो या और कोई भी टैलेंट ना हो इनमें। Plus, if a celebrity is not present, then the ramp walk is not going to go viral, and that's just a fact. And we as Indians, we are living in a जैसे चल रहा है वैसे चलने दो society, and change happens very slowly. So until and unless the followers of these celebrities and influencers start dropping, nothing is going to happen anytime soon, and we are going to remain stuck with this. And that's all for today's video. And I was thinking, would you like a video about Justin and Hailey Bieber and her stalking tendencies, plus her hidden obsession with Selena Gomez? यहाँ मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि is this woman in love with Justin or Selena, because she's a stalker of highest order who has followed Justin for years, and I literally mean years, until she married him. Would you be interested in that? Comment in the comment section. But of course right now I'm working on a few other videos, so Justin Hailey का video will come after a bit, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे proofs इकट्ठा करने होंगे. If you want to keep watching similar videos, then subscribe and turn on your notifications. Until the next video, bye bye.